Rahim. Assalamu alaikum. From the chapter number 3, our today's topic is from the natural regions of Pakistan. The third one point is the desert regions. The desert regions, the first of all, we will discuss about the definition. What is the definition of the desert? The area that receives less than 10 inches of the rainfall annually is called desert. That means कि एक ऐसा इलाका जो सालाना यानी हर साल 10 इंच से कम बारिश होती है वहाँ पे, उसे हम डेजर्ट कहेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लोकेशन, इट्स डिस्ट्रिक्ट्स. Cholistan. I have mentioned the two names over here, Cholistan and Rohi, while discussing the text material of the book. We will discuss about the Thar desert and its names also. So the Thar and Nara in Sindh. After that we will discuss about the professions of this region, annual rainfall of this region, irrigation major issue. After that the second largest desert area, which is called Thal. We will discuss about its location and its districts and its other characteristics also. And the third one major desert area is the Kharan, which is situated in the Balochistan. The yellow shade, which is representing on the page number 58 of your textbook, is the yellow shade is representing the desert areas of Pakistan. So towards the western direction of Pakistan, near the Balochistan, towards the Balochistan. So we will discuss about its location, its low rainfall, thinly populated, low literacy rate, backward and undeveloped area, and after, in the last point, we will discuss about the professions of this region. So as we have discussed about the definition of this paragraph, so you just have to mention over here the definition. After that, the location. From this point, the southeastern part of Pakistan has desert-like characteristics. It encompasses an enormous area, यानी ये एक बहुत ही बड़े एरिया पर या इलाके पर मुहित हैं. In Punjab, the region starts from Bahawalnagar and spreads towards Bahawalpur and Rahim Yar Khan. अगर हम पंजाब के रीजन की बात करें, जब हम इसके साथ मैं आपको मैप भी दिखाना चाहूँगी ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इससे पहले हम अपनी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे कि ये बहावलनगर से लेकर बहावलपुर और रहीम यार खान के इलाके तक फैला हुआ है. इट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सक्खर, खैरपुर, सांगर, मीरपुर खास एंड थरपारकर इन सिंध. यानी कुछ इलाके जो हैं जैसे बहावलनगर से बहावलपुर तक के इलाके ये तो पंजाब में हैं, जबकि इसके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सिंध में बयान की गई हैं. Like in this topic, you can see over here the Cholistan. This area is based on the Punjab province. This Punjab. यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक हाईलाइटेड आपको छोटी सी जो लाइन नज़र आ रही है बाउंड्री की, which is dividing it in the two provinces. The Cholistan area. This area is starting from this area Bahawalnagar to Bahawalpur and Rahim Yar Khan. This area. यहाँ पे जो एरिया है ये चोलिस्तान या फिर रोही कहलाता है. इस इलाके में जब हम पंजाब के इलाके में इन सहराओं को डिस्कस करेंगे, यानी सहरा तो पूरे का पूरा चोलिस्तान और थर कहलाएगा, लेकिन यह पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है. तो यहाँ पे हम पंजाब रीजन के अंदर जितना भी डेजर्ट एरिया मौजूद है उसको हम कहेंगे चोलिस्तान या फिर रोही. जबकि इसी तरह से हम जब ये सिंध में दाखिल होता है तो यहाँ पे हम इन एरियाज़ को कहेंगे, ये स्टार्ट हो रहा है मिठनकोट से और ये जाएगा ठट्ठा तक. यहाँ पे ईस्टर्न यहाँ पे ये ठट्ठा का इलाका मौजूद है और इसके मशरकी साइड पे ये ख़त्म हो रहा है. तो यहाँ पे हम इसे सिंध के इलाके में जब ये पहुँचता है तो इसे हम थर या नारा बोलते हैं. थर या नारा बोलते हैं, जबकि बेसिकली ये पूरे का पूरा डेजर्ट जो है वो थर डेजर्ट कहलाएगा. सिर्फ ये याद रखने की बात है कि पंजाब एरिया में इसे हम चोलिस्तान कहते हैं, जबकि इसी के ऑपोजिट जो भारत में मौजूद रेगिस्तान है उसे हम राजस्थान बोलते हैं. ओके.
After that, the desert is called Cholistan or रोही in the Punjab. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पंजाब में से हम चोलिस्तान या रोही बोलेंगे, जबकि इन सिंध इट इज़ नोन एज थर एंड नारा, जबकि सिंध में ये थर और नारा के नाम से जाना जाता है. ड्यू टू स्कार्सिटी रेनफॉल, यानी बहुत ही कम जो रेनफॉल होती है, वी फाइंड डेजर्ट वेजिटेशन हेयर. यहाँ पे वही जड़ी बूटियों वाली डेजर्ट्स जो हैं वो वेजिटेशन यानी नबातात मौजूद हैं. झाड़ियाँ इसमें ज़्यादातर मौजूद होती हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसोसिएटेड विद द प्रोफेशन ऑफ रियरिंग गोट्स, शीप्स एंड कैमल्स. यहाँ पे आप प्रोफेशंस का देंगे पॉइंट और हेडिंग, और उसमें आप बताएंगे कि इसीलिए चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर सहराई खसूसियात रखने वाली ज़मीन है, तो इसलिए लोगों का ज़्यादातर प्रोफेशन जो होता है वो माल मवेशी पालना होता है, जिसमें भेड़, बकरियाँ और ऊँट वगैरह शामिल हैं. दिस रीजन रिसीव्स लेस एनुअल रेनफॉल. ये इलाका बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है. उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे मॉनसून की हवाएं भी बहुत कम पहुँचती हैं, जबकि इसके साथ जो वेस्टर्न ईरान की तरफ से आने वाली हवाएं हैं वो भी इस रीजन में कम पहुँचती हैं, जिसके बायस यहाँ पे बारिशों की मिक़दार बहुत ही कम होती है. सो वाटर इज़ द मेजर इशू ऑफ दिस पीपल. इसलिए इस इलाके में अगर हम बात करें तो पानी जो है वो इस इलाके का मेजर इशू है. रेन वाटर इज़ स्टोर इन द पॉन्ड्स, इसलिए बारिशों के पानी को तालाबों में जमा किया जाता है. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, और इस तरह से ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है. सम एरियाज आर इरीगेटेड बाय कैनाल्स टू, इसी तरह से कुछ इलाकों को नहरों के ज़रिए से सैराब किया जाता है. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ बेस्ड द सेकेंड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ थल. द मेन हेडिंग विल बी बेस्ड ऑन द सेकेंड डेजर्ट थल. नाउ talk about its location. Point will be, heading will be written over here, location. It is situated between the river Jhelum and river Indus. ये दरिया सिंध और जेहलम के दरमियान में वाक़ है. अगर आपको मैं दोबारा से मैप दिखाऊं तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये थल डेजर्ट जो है वो कहाँ पे मौजूद है. Dear students, you can see over here, this one is the Thal desert. The orange shade is representing the Thal desert. Thal desert को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर इंडस रिवर, द राइट हैंड साइड पर जेहलम रिवर is flowing. So we can say that this desert area is situated between the two major rivers of Indus River and Jhelum River. Okay, after having a look on the Thal desert, it is situated between the river Jhelum and river Indus. This desert consists of the districts of Mianwali, Layya, Bhakkar and Khoshab and Muzaffargarh. ये इंपॉर्टेंट इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं. जैसे हमने पहले भी पेज पे रिटन जितनी भी मटेरियल है उनके तमाम हेडिंग्स को आपने फोकस करना है. मेजर डिस्ट्रिक्ट्स. आफ्टर दैट सम पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर इरीगेटेड बाय द कैनाल्स that have been dug from the river Indus. यहाँ पे दरिया सिंध से नहरें खोद कर जो निकाली गई हैं उनसे इन डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी ये मियांवाली, लैया, भक्खर, खुशाब और मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको पानी दिया जाता है, इनको सैराब किया जाता है. The next one point is, besides canal irrigation is done with the tubewells too. यहाँ पे ट्यूबवेल्स भी इसी तरह से उनसे भी फसलों को सैराब किया जाता है. इन सम एरियाज एरिड फार्मिंग कैन बी सीन, और कुछ टुकड़ों की फॉर्म में भी हमें यहाँ पे जो आपाशी है वह नज़र. एंड एरिड फार्मिंग आप इसको मज़ीद अगर क्लियर करें तो बारानी भी इसे आप कह सकते हैं, यानी बारिशों पे डिपेंड करने वाली फार्मिंग भी होती है. यानी जो अगर बारिशें होंगी तो फसलों को पानी मिलेगा, उस साल फसलें अच्छी होंगी, अदरवाइज़ फिर कहत साली का शिकार हो जाती हैं. The next, the third desert of Pakistan, Kharan, is situated in Balochistan. Some parts of the district Chagi are included in the deserts. यानी इसमें चागी का इलाका जो है जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स का एक्सपेरिमेंट भी किया था, ये चागी डेजर्ट्स जो हैं, चागी के इलाके जो हैं यहाँ पे ये डेजर्ट मौजूद है. इट इज़ मोस्टली विदाउट एनी वेजिटेशन. यहाँ पे ज़्यादातर कोई नबातात नहीं हैं. उसकी रीज़न ये है बिकॉज इट रिसीव्स एन एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिशें होती हैं.
इट्स थिनली पॉपुलेटेड, यही वजह है कि इसमें पॉपुलेशन रेशो भी बहुत ही कम है। पीपल हैव टू ट्रेवल फॉर माइल्स टू फेच वाटर, इसलिए लोगों को कई मील तक सफ़र करना पड़ता है अपने घरों में पानी लाने के लिए। द पीपल डिपेंड्स मोस्टली अपॉन द रेनफॉल, इसलिए लोगों को ज़्यादातर बारिशों पर ही निसार करना पड़ता है। पीपल क्लिंग टू एज ओल्ड ट्रेडिशंस, इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं वो अभी तक अपनी पुरानी रिवायात के साथ ही जुड़े हुए हैं। लिटरेसी रेट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू नन, यानी यहाँ पे लिटरेसी रेट भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एंड अनडेवलप्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, यही वजह है कि हम इसे बैकवर्ड और अनडेवलप्ड एरिया अभी भी कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल rear sheep, goats and camels. If you talk about its professions, so as you know, these are not the rich agricultural lands like the Punjab and the Sindh. So ये एरिया जो है यहाँ पे भी लोग अपने माल मवेशी पाल कर ही गुजारा करते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।